Any doubts till now? Anybody who has any doubts? So we have discussed pandas. Now with pandas, there is an exercise which I posted. I think only 3 people have turned in. So what we do is that I will keep doing some practicals here, and then later on we will discuss when more people turn in the assignment. Then I will discuss the assignment also. So I'll give a chance so that you people try to do it yourselves, and that's going to help you to understand pandas better. So now, if you look at your Google Classroom, I have shared this cycling in Austin. I have shared the Excel and I have shared the form also. So एक बार जाके देख लो. So this is the bike data set questions that you have. And I've shared also the CSV file, I think. Can you see in the classwork? So there's this bike data quiz, exercises mein, and general material mein, there's this bike data. This is a CSV file. Is it okay? So open this form and open this file also. Try to read the file. जहाँ पे भी stored है, so पहले तो you will import all these normal files that you have. Libraries import करी, फिर अपना drive को load करा, and then you will read your CSV file. Is everybody able to see in the classroom or not? Yes, ma'am. So try to load it. So we have used pd.csv, read CSV. So read underscore CSV use करके जहां पे भी फाइल स्टोर करी है, save it in your local drive and then upload it into your drive wherever you want to. एक पूरा नाम दे दो जहां पे भी जो देना है and उसे लोड कर लो. सबका हो गया है? How many people are doing it parallelly? बेटा अगर नहीं करोगे तो दिस बेटा लोकल ड्राइव से फिर अपनी ड्राइव में सेव कर लो ना, गूगल ड्राइव में जैसे इमेज प्रोसेसिंग में करते थे. एक ड्राइव में एक फोल्डर बना के वहां से स्टोर करके और उसी ड्राइव से कनेक्ट करना है. सो इट इज द सेम प्रोसेस. किसी का नहीं हो रहा है तो पूछ लो. एनीबडी हु हैज अ प्रॉब्लम? मैम इसको जो ओपन किया था तो एक मुझसे सीट्स ओपन हुआ था ये गूगल सीट पे. नहीं ओपन नहीं करना, ऐसे करना है, पीडी लोड करना है बेटा. ओपन करोगे तो गूगल शीट्स पे ये ऐसे दिख जाएगा, है ना. सीएसवी फाइल है तो एक्सेल में गूगल शीट्स में ऐसे दिख जाएगा. बट अभी हमें क्या करना है, हमें इस सेशन में इसको लोड करना है. जैसे हम लोग इमेज प्रोसेसिंग में करते थे, इमेज को लोड करते थे. सो imcv2.im रीड करके, वैसे ही इसमें pd.read.csv करके इसको लोड कर रहे हैं इधर. सो इट्स कमिंग इन द b, इट्स अ डेटा फ्रेम एंड इट इज कमिंग इन द वेरिएबल b. अगर टाइप भी करोगे so it will be a data frame. Is it okay? सबका लोड हुआ बेटा? जिसको जो प्रॉब्लम हो रही है, these are the initial stages. If you don't ask, आगे जाके तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा, I can assure you, because this is just the starting point.
अगर ये सब नहीं सीखोगे तो आगे जाके कुछ भी नहीं समझ में आएगा, बिकॉज दिस इज गोइंग टू गेट टफर फ्रॉम हियर, इट्स नॉट गोइंग टू गेट इजी. So anybody who has any problem, and I will not pass like this in the labs, because this is a completely lab based syllabus. इसमें मैं theory कुछ नहीं पूछ पाऊंगी. DIP में I had some theory to ask. Here I don't have theory. Here there's data and you have to analyze the data. You have to create models. So जब तक कर नहीं पाओगे तब तक कोई फायदा नहीं है theory लिखने से. Is it okay? लोड हो गया है सबका? किस किस का लोड हुआ, किस किस का नहीं हुआ? मैम कर रहा हूँ. डन? यस मैम, लोड हो. ओके गुड. और किसी का लोड हुआ? यस मैम. ओके लोड हो गया मैम. यस. तुम याद हो कैसे चाचा? चलो, सो इट्स लोडेड. तो देखो अब क्या है, अब लेट्स गेट टू द थ्योरी पार्ट. अभी वी आर टॉकिंग अबाउट साइक्लिंग इन ऑस्टिन. ये कोई एक डेटा सेट है. अगर देखोगे तो यू हैव यूजर आईडी ऑफ द डेटा. एज में साइक्लर का डेटा में यूजर आईडी एक यूनिक आईडी असाइन कर दी है. दे आर 121. यू कैन सी रोज. सो 121 हमारे पास यूजर्स के डेटा है. वी हैव द एज ऑफ द यूजर, वी हैव द जेंडर ऑफ द यूजर. स्टूडेंट, इफ इट इज अ बाइनरी वैल्यू, यू कैन सी हियर. अगर 1 है, इट मींस इट्स अ स्टूडेंट. 0 means he is not a student, he or she is not a student. Employed, 1 है तो yes, the person is employed. 0 means it unemployed. Cycling frequency, ये किस तरह का हो गया? Now can you identify what kind of Neuer form में क्या क्या है? User ID क्या है? User ID क्या होगा? Neuer form क्या होता था? Nominal, ordinal, interval and ratio. So can you identify? यूजर आईडी क्या है? यूनिक आईडी है. सो इट कैन गो इन द नॉमिनल फॉर्म. इसका कोई वैसे मतलब नहीं है. इट्स जस्ट एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पर्सन. एज हो गया. जेंडर, जेंडर क्या हो गया हमारा? इट्स अ क्लासिफाइड डेटा, बाइनरी डेटा है. देन स्टूडेंट इज अ बाइनरी डेटा, एम्प्लॉयड इज अ बाइनरी डेटा. साइक्लिंग फ्रीक्वेंसी में क्या है? आई हैव सर्टेन वैल्यूज हियर. डेली दिख रहा है, लेस देन वंस अ मंथ दिख रहा है, सेवरल टाइम्स अ वीक दिख रहा है. सो मे बी they have defined certain categories here और उसमें हमने डाल दिया है सारी वैल्यूज को. डिस्टेंस इज इन किलोमीटर्स और माइल्स, जो भी होगा. सो दिस इज अ फ्लोट क्वांटिटी. टाइम कुड बी इन मिनट्स टेकन, जैसे लग रहा है देख के. सेकेंड्स नहीं होगा, आवर्स भी नहीं होना चाहिए. स्पीड माइल्स पर आवर या टाइप का कुछ होगा, बिकॉज जिस तरह का दिख रहा है किलोमीटर पर आवर भी हो सकता है, माइल्स पर आवर आई डोंट नो. लुक्स लाइक मोर लाइक 1326. हाँ, माइल्स पर आवर होना चाहिए. सो इस तरह का हमारे पास डेटा है. नाउ हेलो,
So now you have some data here. मैम हाँ, एक सिस्टम से एक जना बात करा करो अगर साथ में हो तो, और अगर दो सिस्टम से लॉग्ड इन हो तो एक ही माइक ऑन करके बात करो. बताओ किसको क्या प्रॉब्लम है. मैम फाइल अपलोड नहीं हो गई. ठीक है. नहीं हो रही है. बेटा अपना कहीं तुम्हारा इंटरफेरेंस क्यों है इतना. कोई और साथ में है इसको बंद करो, या अपने और डिवाइसेस बंद करो जहाँ पे माइक हो. लोड नहीं हो रही है. किस किस की लोड नहीं हो रही है. देखो, लुक एट दीज स्टेप्स. मैं थोड़ा सा इसको चैट में डाल देती हूँ. थोड़ा सा यू विल हैव टू चेंज द पाथ. जैसे पहले करते थे, ऑब्वियसली यू नो दैट. तो ड्राइव तुम्हें अपने, यू विल हैव टू सी वट एवर फाइल फोल्डर जो भी नाम है उसके हिसाब से यू विल हैव टू चेंज द पाथ ऑफ द फाइल. इस तरह से यूज कर लो. नाउ लेट्स गो टू द थ्योरी पार्ट. सो सबसे पहले अब डेटा हमें समझना है, राइट. सो वी आर लुकिंग एट द डेटा. So while we are looking at the data, we need to understand which data value should be treated as noise or outliers. So obviously there may be certain values which are outliers. Outliers मतलब humanly possible नहीं है. अगर कहीं पे ऐसे दिखी speed 60 kilometers per hour या इस तरह से, so you know that it is not humanly possible. It is an outlier. So you need to understand data. It is like जब तक डेटा के बारे में पता नहीं होगा तभी बोलते हैं कि you should have an expert of the field. So if you are looking at some nuclear data, some biological data, हम लोग को नहीं समझ में आएगा कि okay, maybe we are looking at the length or size of the RBC, but we would understand कि क्या एक normal defined range होता है. So we need to a person from that particular field to be able to tell you, to be able to make you understand the data. Then measures में we look at the central tendency of the data. Central tendency में कुछ already values you people must be knowing. These are very common: mean, median, mode और एक mid range होता है. Then data dispersion, कितना data spread out है, वो कैसे पता चलता है. Spread out of data from the variance, there's a range, quartiles होते हैं और inter quartile range होती है. Let's understand all of them one by one. So measure of center, center की value क्या हुआ. एक तरह से suppose if I have इस तरह से legos है suppose, या मेरे पास कुछ toy type का है. I'm trying to find out the mean. Mean क्या होगा, जिस वैल्यू पे सपोज इस सब का हमें फाइंड आउट करना है मीन, ऐसा कौन सा सीजी का पॉइंट होगा जहां पे इफ आई बैलेंस दिस ये पूरा स्टेबल हो जाए. अगर हम यहाँ रखेंगे तो ये टॉपल हो जाएगा. सबको समझ में आ भी रहा होगा क्योंकि ये क्या है, इस तरफ हैवी हो जाएगा तो ऐसे गिर जाएगा. अभी हम इधर रख देंगे तो भी गिर जाएगा बिकॉज ये वाला पार्ट थोड़ा सा हैवी हो जाएगा तो इस तरफ गिर जाएगा. एवरीबडी अंडरस्टैंड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ मीन. सो दिस इज द वे वैल्यू where it is able to balance. So mean is what? It is an average of all the values. You already know that. It's the simplest point. कि सबका values को add करा, divide by the total number of values that you have. This is your mean. And you know the quantity. Mu is the Greek letter which is used to express the mean. फिर mean हो गया. अब एक होता है weighted mean. Weighted mean सबको कोई example मेरे को देगा weighted mean का. What is a weighted mean? कहीं देखा है तुम लोग ने weighted mean? Anybody? Anybody who knows what a weighted mean is? बेटा तुम लोग को सुनाई भी दे रहा है, बात भी कर रहे हो, क्लास Yes, अटेंड ma'am. भी Yes, कर sir. रहे हो. हाँ तो weighted Yes, mean sir. देखा है कभी? Yes, ma'am. कहाँ देखा है? मैम जब स्टैटिस्टिक्स पढ़ी थी डेटा साइंस के लिए तो उसमें देखा था.
अच्छा, और अपनी उसमें नहीं देखते हो ग्रेड शीट में? ग्राफ थ्योरी में। ग्रेड शीट ग्राफ में में देख रहा ग्रेड शीट में क्या है तुम लोग का? यस मैम, रेटेड। सीपीआई कैसे कैलकुलेट होता है? क्रेडिट से होता है कि नहीं होता है? यस मैम। तो क्रेडिट्स कितने होते हैं? लाइक 2 क्रेडिट कोर्स, so it has less of weight. 4 क्रेडिट कोर्स has higher weight, 5 क्रेडिट कोर्स has maximum weight. तो हम लोग वेट्स के हिसाब से तुम लोग का मल्टीप्लाई करके नहीं निकालते हैं? सो ये तो सबने देखा होगा अपनी अपनी ग्रेड शीट में. इज इट ओके? यस मैम। यस। सो दिस इज योर वेटेड मीन. अब मीन अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं? सो लेट्स फर्स्ट ट्राई एंड डू दिस एक्सरसाइज. थोड़ा सा कुछ कुछ यहाँ पे काम करोगे तो आगे बढ़ेंगे. तो अभी ये वाले में सब लोग थोड़ा सा ईमेल आईडी वाईडी डाल के, चलो इसका सा फॉर्म खोल लिया है सबने? फॉर्म खोलो, सबका फॉर्म खुल रहा है. फॉर्म खुल रहा है कि नहीं? यस मैम। यस मैम. So now let's look about the data set. I'm just trying you people to explore this data set. What is the age of the 7th rider? अब कैसे ढूंढोगे एज ऑफ 7th राइडर? मेरे को निकालनी है इसमें 7th राइडर का एज. कैसे देखोगे? 7th राइडर का लोकेशन क्या होगा? यूजर आईडी से, यूनिक आईडी से. यूनिक आईडी. ओके, बट यूजर आईडी फिर हमें स्पेसिफाई करनी पड़ेगी कि यूजर आईडी इक्वल 7. ऐसे करना पड़ेगा. यस मैम। अदरवाइज वी हैड टोल्ड, इफ आई रिमेम्बर, मैंने रोज को निकालने के लिए क्या बोला था? आई लॉक यूज करते हैं. आई हैव टोल्ड यू दिस. सो आई नो लोकेशन विल बी 6 फॉर अस बिकॉज इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0. अगर मैं बी आई लॉक 6 बोल दूं तो 7th राइडर की सारी डिटेल्स आ जाएंगी. Yes or no? यस मैम। And I'll be able to see the age 45 and I can simply put it here 45. Correct answer 45 दिख भी रहा है तुम लोग को. ठीक है? यस मैम। How many of the first 10 riders in the data set ride daily? कैसे करेंगे? अब हमें निकालनी है हाउ मेनी ऑफ फर्स्ट 10 राइडर्स. तो पहले तो फर्स्ट 10 राइडर्स निकालने हैं, फिर उसके बाद तो फर्स्ट 10 राइडर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? बी डॉट हेड 10. अगर हम स्पेसिफाई कर देते हैं, इफ आई डोंट स्पेसिफाई व्हाट विल हैपन? देखो इधर बी डॉट हेड करते हैं तो बाय डिफॉल्ट इट गिव्स मी 5 वैल्यूज. कैन यू सी दिस? 5 वैल्यूज. अगर मैंने स्पेसिफाई कर दिया 10 तो इट विल गिव मी 10 वैल्यूज. और फिर उसमें पूछा हुआ है हाउ मेनी ऑफ द फर्स्ट 10 राइडर्स राइड डेली. अब इसमें हम डेली 1 2 3 ऐसे निकाल सकते हैं, बस ऐसे ही देख के. इट्स द इजीएस्ट वे पॉसिबल. और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. और कोई तरीका बता सकता है? क्या हो सकता है? बेटा जब तक इंटरैक्ट. हाँ बताओ. मैम मीन निकाल के भी कर सकते हैं ऐसे तो. मीन निकाल के? मीन कैसे होगा बेटा? हमें साइक्लिंग फ्रीक्वेंसी चाहिए डेली, और ये ऐसी वैल्यूज का मीन कैसे निकाल सकते हो? अच्छा ओके मैम, मुझे लगा डिस्टेंस का. सॉरी नहीं देखना है. नहीं नो सॉरी, डजंट मैटर. अभी डेटा समझो. डेटा में क्या है? साइक्लिंग फ्रीक्वेंसी ही दी हुई है सीधे सीधे, है ना? ये नहीं दिया हुआ है. तो फ्रीक्वेंसी जब दी हुई है, जो एक चीज फील्ड दी हुई है, हम उसी को देख लेंगे. ओके मैम, मुझे डिस्टेंस. हाँ आई अंडरस्टूड, यू वर लुकिंग एट द डिस्टेंस. मैं समझ गई थी, इसीलिए मैंने बोला कि साइक्लिंग फ्रीक्वेंसी पहले डेटा अच्छे से देखा करो क्या क्या दिया हुआ है. सो साइक्लिंग फ्रीक्वेंसी जब दिया हुआ है तो मैं उसमें बस, और हेड में को बस 10 वैल्यूज चाहिए एक बार, तो हमने इस तरह से निकाल लिया. हेड करा, आई सी 3 वैल्यूज, आई पुट 3 वैल्यू हियर. यू कैन सी करेक्ट आंसर इज 3 हियर. सबको दिख रहा है? यस मैम. Now what is the speed of the first female who
cycles less than 1 time per month. अब हमें फर्स्ट फीमेल एक तो निकालनी है who cycles less than 1 times per month. कैसे करोगे? स्पीड तो ऑलरेडी दी हुई है, अब हमें फर्स्ट फीमेल निकालनी है. तो अब हमने क्या करा, देखो अब इसमें क्या है, अ गुड आइडिया वुड बी, पहले ट्राई करो कि एक पूरा डेटा सेट बना लो, डेटा फ्रेम, जिसमें कि सिर्फ फीमेल्स हो. ऐसा करो, कैसे बनाओगे? I'll give you the steps and you have to give me the code. कोड इधर लिख सकते हो, जिसका हो जाए यहाँ पे लिख सकते हो, मैसेज कोई भी कर सकता है इधर. So put the code here. Try to make a data frame for all the females present in this data. नीलम, सोनी, बेटा अभी अपलोड नहीं हुआ किसी का? नीलम, what happened? What's the problem? Did you do all these steps? ये सब चेक कर लेना, ये सब केस सेंसिटिव है बेटा. बाइक डेटा जिससे तुमने सेव करा है, अगर स्पेस है बीच में तो वो डालना पड़ेगा. नेम इज सेंसिटिव, केस सेंसिटिव, एंड एवरीथिंग, मतलब सब कुछ देखना पड़ेगा. स्पेस है, तुमने जैसे सेव करा है उसको एग्जैक्टली वही पाथ. और ये मैंने फोल्डर बना रखा है, इसके बाद तुमने किस फोल्डर में रखा है उसका भी नाम केस सेंसिटिव है, ये भी केस सेंसिटिव है. जहां अपलोड करा है उसको कॉपी की तरह तो नहीं कर दिया. लुक एट द नेम हियर, यू विल गो हियर एंड जैसे ये वाला है मेरा माई ड्राइव. सो आई हैव दिस बाइक डेटा फोल्डर एंड इसमें ये बाइक डेटा इस तरह से इस नाम से है. सो लुक एट द नेम क्लियरली एंड द पाथ, बी वेरी श्योर. That can be the only mistake. Otherwise, you can share your screen and I can see it. There's no problem. फीमेल वाला डेटा सेट किसी ने बनाया? Can you write down the code here? So, अब हम क्या करेंगे, देखो I'll give you a hint. Females equals, अब हमने क्या करा, पहले ये देखो, अगर मैं इस तरह से कहती हूँ B, अब इसमें I can specify, इस कॉलम का नाम क्या है, जेंडर. तो देखो अगर इसे करेंगे तो जेंडर इक्वल्स इक्वल्स और ब्रैकेट में, और ये कैपिटल F ही होगा. इतना अगर हम करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रू फॉल्स वाला आ जाएगा. याद है ना? अगर हम इसमें B लगा के ऐसे ब्रैकेट्स में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसी में से जहां जहां ट्रू होगा वो वैल्यूज एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी. कैन यू सी दिस? और फिर इसको हमने एक डेटा फ्रेम का नाम दे दिया फीमेल्स करके. सो इफ आई गिव फीमेल्स नाउ, इट विल बी अ डेटा फ्रेम where only the females are there. अब मेरे को क्वेश्चन क्या था, फर्स्ट फीमेल who cycles less than 1 time per month. अब मेरे को सिर्फ फ्रीक्वेंसी देखनी है इसमें, less than 1 time a month. तो साइक्लिंग फ्रीक्वेंसी ये तो दिख ही रहा है इसमें. So इसकी स्पीड देखो, ये फर्स्ट वाली यही है. चांस की बात है, हो सकता है, मतलब अगर मैं कहती फर्स्ट वुमन हु साइकिल सेवरल टाइम्स पर वीक, तो ये वाली हो जाती. इज इट ओके इफ आई वुड हैव सेड फर्स्ट वुमन हु ट्रैवल्स सेवरल टाइम्स पर मंथ, तो इसमें ये वाली हो जाती. समझ में आ रहा है बेटा तुम लोग को? यस मैम. है ना? फर्स्ट वुमन हु ट्रैवल्स डेली, ये वाली हो जाती. सो स्पीड इसकी 8.10 है, वो दिख रहा है यहाँ पे. So I will put that 8.10. You can see the correct answer is 8.10. Is it okay? यस मैम. अब जो है, अब इसमें you are trying to recognize variables of interest and categorize them. So what type of variable is a student? Student कैसा variable है बताओ भाई. Student तो यहाँ पे दिख रहा है, किस तरह का variable है?
80 What kind of a variable is it? Mom, binary. बाइनरी तो नहीं होता है कोई वैल्यू, क्या कहते हैं इसको? Ma'am, कैटेगोरिकल. categorical. करेक्ट, परफेक्ट. सो इट्स अ कैटेगोरिकल वेरिएबल. सो अभी क्वेश्चन में पूछा हुआ है कैटेगोरिकल है या न्यूमेरिकल है, सो इट्स गोइंग टू बी अ कैटेगोरिकल. और इसमें टिक लगा हुआ है, दिख रहा है? ये अपना सब अपने आप खुद करने की कोशिश करना एंड देन सबमिट इट लेटर ऑन. व्हाट टाइप ऑफ वेरिएबल इज साइक्लिंग फ्रीक्वेंसी? साइक्लिंग फ्रीक्वेंसी किस तरह की है? न्यूमेरिकल. न्यूमेरिकल है. देखो फ्रीक्वेंसी. हेलो, हाँ नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? हाँ, साइक्लिंग फ्रीक्वेंसी किस तरह का वेरिएबल है? ये देखो किस तरह का वेरिएबल है बेटा?
Nominal. देखो इसमें क्या हो रहा है, कैटेगरी इज डिफाइंड है कि नहीं, लेस देन 1 मंथ, डेली, सेवरल टाइम्स पर वीक, सेवरल टाइम्स पर मंथ। तो ये क्या हो गया, अगर देखेंगे कैटेगोरिकल और न्यूमेरिकल में, तो इट इज अ कैटेगरी। इज इट ओके और नॉट? ये दो ऑप्शंस में क्या हो गया, कैटेगरी कैटेगरी। व्हाट टाइप ऑफ वेरिएबल इज डिस्टेंस? डिस्टेंस में कैटेगोरिकल या न्यूमेरिकल क्या होगा? न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल। ठीक, सो अपना ये सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब इन दिस लैब हम लोग न्यू डेटा सेट बनाएंगे, ये ऑलरेडी हम लोग ने कर लिया है। जस्ट द स्टूडेंट राइडर्स, तो हमें सिर्फ स्टूडेंट राइडर्स लेने हैं। अब पहले एक बार ये कोड लिख के मेरे को भेजो, स्टूडेंट्स को निकालो इसमें से, ट्राई टू मेक अ डेटा सेट, जैसे हमने फीमेल्स का बनाया है, ट्राई टू यूज द ओरिजिनल डेटा सेट, ये वाला, और इसमें से स्टूडेंट्स को सिर्फ सेपरेट आउट करो। कौन कोड लिख के देखो आओ मेरे को। So you will create a data set including only the student variable, students in that data set. लिखो जल्दी से और चैट पे लिखो मेरे को। कैसे करेंगे स्टूडेंट को सिर्फ सेपरेट? किसी का हुआ? Nobody is able to do this? जब फीमेल्स का हो गया तो उसमें क्या करना है, सिर्फ स्टूडेंट को ही तो करना है सीधे सीधे। Anybody? बेटा तुम लोग को आ नहीं रहा है या कर नहीं रहे हो या बता नहीं रहे हो, क्या है? बी स्टूडेंट, ये तो स्टूडेंट नहीं है। अब देखो हमें क्या करना है, लुक एट दिस कैटेगरी। सबसे पहले ये देखो, यहाँ पे कौन से वैल्यू स्टूडेंट की ऐसी होगी जिससे हमें पता चलेगा इस कॉलम में कि ये बच्चा स्टूडेंट है या ये पर्सन इज अ स्टूडेंट। 1 1, सो स्टूडेंट इक्वल, सो हम क्या करेंगे, इफ आई से बी और हम इस तरह से करें बी, इसमें अगर अपने आप ही स्टूडेंट आ जाएगा, वैसे तो देखो ऐसे करा स्टूडेंट, सॉरी ये वाला फील्ड जो है, अब क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर हम ये करते तो क्या होगा, सारे 1s रिटर्न कर देगा, ट्रू फॉल्स आ जाएगा। अब अगर हम इसके चारों तरफ बी में ये इनपुट ले लें, बी डेटा फ्रेम से वी आर ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट दीज वैल्यूज, व्हाट विल हैपन, सारी वैल्यूज जहां पे स्टूडेंट इक्वल्स 1 है वो आ जाएगा, देख रहे हो, ओनली स्टूडेंट्स इक्वल्स 1 वाली वैल्यूज आएंगी, and this I can store it as a data frame student. So I will simply say this part here, student equals b student equals 1. ये क्लियर हो रहा है सबको कि नहीं, कैसे हो रहा है? करेक्ट, गुड वारू। बस थोड़ा सा ब्रैकेट्स का ध्यान रखो, ये वाला, बाकी मतलब इससे भी जाएगा, दिस नो प्रॉब्लम। Now, what is the next question? अब ये पूछ रहे हैं कि what is the correct terminology for this data set? तो data frame है, index है, table है, vector है, क्या है ये चीज जो हमने नया एक वेरिएबल क्रिएट करा
It's a data frame. Correct. Then, how many of the cyclists were students? How often did they ride the cycle? And what is the average distance? अब हमें पहले तो ये सब करना है. तो हम क्या करेंगे? पहले तो how many students are there in the data set? कितने students हैं भाई? कैसे निकालोगे? So हमारे पास स्टूडेंट्स आ गए. ये हो गए स्टूडेंट्स. अब इसकी कितनी लेंथ है कैसे निकालोगे? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर? बताओ क्या सोचते हो? हाउ कैन वी फाइंड आउट इसकी जितने कितने वैल्यूज है इसमें कैसे निकालेंगे? ट्राई करके देखो बेटा. अगर एलईएन लगता है किसी को कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ट्राई करो. एरर ही तो देगा ज्यादा. आ गया ना एलईएन स्टूडेंट? कितना है? 14. So I should have 14. Is it okay? Now since we only want to work with the student, ये हमने create कर ही लिया है. How many columns do you see in this new data frame? Columns कितने हैं? अच्छा, कॉलम्स निकालने के लिए कुछ कर सकते हैं हम लोग स्टूडेंट्स में? कॉलम्स ऐसे तो दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बट इसका कुछ और कुछ हो सकता है. अगर हमने स्टूडेंट और डिस्क्राइब करा, आई नो दे आर 14 रोज एंड 9 कॉलम्स. इज इट ओके? सो हो सकता है बहुत बड़ा सा डेटा फ्रेम हो and I'm not able to count also, and I don't want to count. Why should I count? So I can simply say student dot describe number of rows and number of columns will be displayed, which I can use here. So I can see 9 here. ये सबको समझ में आ रहा है बेटा? Is there any problem? No, ma'am. Okay, fine. So then आगे बढ़ते हैं. We also want to know how far the students travel on average. अब ये बना के दिखाओ. डिस्टेंस का वेक्टर जो है अपने आप बना के दिखाओ मेरे को. पहले तो इसका कोड लिखो. क्रिएट अ वेक्टर ऑफ डिस्टेंसेस ट्रैवल्ड बाय द स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स में से एक वेक्टर बनाना है जिसमें सिर्फ डिस्टेंस की वैल्यूज आ जाए. ये वाला कॉलम. कोड लिख के दिखाओ. किसी का आएगा? तुम लोग को टफ लग रहा है क्या? Are you finding this tough? At least let me know भाई. तुम लोग से क्या बोले हम, समझ ही नहीं आता है यहाँ पे बैठ के. Is it tough for you guys?
See, I'm thinking if you don't want to study this course, let it be. Then I'll just drop this course. एक कोई theory course तुम लोग को पकड़ा देते हैं, वो पढ़ लो फिर तुम लोग. अभी तो टाइम ज्यादा नहीं हुआ है, अभी मिड सेम्स होने हैं. Is it okay? हाँ बेटा, ना पढ़ रहे हो, ना बता रहे हो, ना रिस्पॉन्ड कर रहे हो. आई डोंट नो व्हाट टू डू. I've been putting so much of effort creating all these files so that you people actually get to do it and learn karo kuch. It's been tough for us also. Otherwise it's very easy for us. Here I've been creating all these files just because we have to do it online. And if people don't respond only, then it becomes very difficult. It's a very sought after course. People pay so much of money just to do these courses. And you people are getting it here in the department and people don't want to study it. Makes it completely useless. आ रहा है मैम समझ में.